Hello and welcome students of class 12 to the online platform which is being created by Discovery School and in collaboration with YCL, that is the brand for quality education. Now over here we are going to give you the best coaching facility along with the best faculty in the town for the preparation of your JEE and NEET. So for receiving all the updates and the daily videos, you have to just go to the YouTube and you have to search for the Discovery and YCL channel over there. And here you will be getting all the daily videos for all the subjects, that is the PC, MB, Physics, Chemistry, Biology and your mathematics over there. Also, just get yourself subscribed over here so that whenever we will be posting any kind of material regarding the JEE and the NEET preparations, you will be directly getting the notifications by clicking the bell icon. Clear? So let us start today's lecture. And today we will be actually going to deal with the second part of the pedigree analysis. We were discussing about the pedigree analysis where we just find out how a disease causing gene is getting transmitted from one generation to the another generation. So by general study of the generations, we find the transmission of a disease causing gene. And we had also learned that in pedigree analysis, we will be considering four kinds of inheritance. The first one to be the cytoplasmic, next is the Y-linked, and the two will be that we will be discussing it today, that is the X-linked and the autosomal diseases. Clear? So let's begin. So first of all, what we will be doing today, we have to get a rough idea of how the autosomal and your X-linked genes functions. X-linked gene functions. So we know in both the cases, they will be having or they will be just getting determined by the presence of either they can be in the dominant form or they can be in the recessive form. So the same goes with if I talk about the X-linked genes. So the alleles which will be expressing this type of genes, they can also be present either in the dominant form or they can be in your recessive form. Clear? So we will be now taking you through some tricks or guides by which, just by looking at a pedigree chart, how can you identify or how can you differentiate that yes, this kind of a pedigree is belonging to an autosomal dominant disorder or this pedigree is dependent on an X-linked dominant disorder. For that, we will be requiring two concepts. First, we had already discussed about the skip of generation. In our previous class, we had already discussed about this concept that if in a pedigree, like this means the female, when marries a male, if the progeny will be having affected children. What I'm telling, this is my parental generation and this is my F1 generation. So here I am observing that in this generation, both the couples are normal. So here, both the couples we can say that they are normal. But here in the F1 generation, we are getting that one child to be affected. So actually we can see that in one generation to the next generation, there is being observed the skip of generation. So we can say skip of generation is present over here because one generation is being missing over here. So this is only possible for, I have told you, if it is a recessive gene.
So for recessive genes, there will be this kind of a pattern which we will be following, that they will be skipping a generation. Clear? So if I talk about the next example, if I talk about the next example, that is the second case, we can say that out of the two couples, the male is affected and now they are having also affected children. So here we can see that in the parental generation, one of the couple is affected, and as well in the F1 generation, we are getting one of the child, that is the girl child, to be affected. So here we are not getting any kind of skip of generation, so we can say that no skip of generation is taking place. No skip of generation is taking place. And as we have discussed earlier, this is only a revision which is going on. So this, if the skip of generation is not taking place, then that will be due to the presence of a dominant gene. A dominant gene. Clear? समझ में आया? So हम लोग जब भी आपका एनालिसिस करेंगे regarding the dominant or the recessive, this thing, the first of all we had to look into the pedigree is that whether there is skip of generation is being followed और the skip of generation है या नहीं है, मतलब ये हमें देखना है. ठीक? और हम लोग क्या देखेंगे? अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में skip of generation नजर आ रहा है, मतलब देयर इज कोई एक जनरेशन में आपका वो डिजीज अपीयर नहीं हो पाया, एक्सप्रेस नहीं हो पाया, सो दैट द रिजल्ट जो आपके प्रोजेनीज होंगे वो हो सकता है नॉर्मल हो. ठीक? सो दैट केस दैट विल बी ओनली पॉसिबल इफ द जीन विल बी रिसेसिव जीन. बट हम लोग जब इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक जनरेशन में भी अफेक्टेड हो रहे हैं आइदर ऑफ द कपल्स, एंड द प्रोजेनी में भी जो आपके चिल्ड्रन है उसमें भी अफेक्टेड हो रहा है, सो उस केस में हमारा क्या होगा ना, यहाँ पे स्किप ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है, एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन. क्लियर? नाउ वी विल नाउ बी टेकिंग थिंग्स फर्दर. अगर ये हमें पता चल गया, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ऑटोसोमल. ऑटोसोमल लिंक्ड. और मैंने पहले ही बताया था कि ऑटोसोमल लिंक्ड विल बी कंसिडर्ड एज टू केसेस. इट कैन बी आइदर डोमिनेंट और इट कैन बी आइदर your recessive. Clear? Autosomal अगर है, so we can say that the two alleles will be capital A और small a. अगर डोमिनेंट केस होगा, so डोमिनेंट के अंदर जो प्रोजेनी होगा that will be either having capital A that is homozygous और capital A small a. ठीक? So it will be the dominating which will be carrying the disease causing gene, हम लोग बोल सकते हैं. So इसका जो capital A है, this will be actually causing the defective gene. So हम लोग ऐसा करके defective gene को लिख सकते हैं. So either it can be expressed as a heterozygous condition or it can be expressed in the both. Clear? अब बट इफ आई टॉक अबाउट द रिसेसिव वन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जब स्मॉल ए होमोजाइगस कंडीशन में अगर आपका होगा, एंड दैट टू बोथ विल बी कैरिंग द डिफेक्टिव जीन्स. यहां पे स्मॉल डी से मैं दिखा दिया कि हाँ वो आपका डिफेक्टिव जीन है, कैपिटल डी फॉर द डोमिनेंट एंड द स्मॉल डी फॉर द रिसेसिव वन. सो यहां पर ओनली अंडर दिस कंडीशन जो आपका होगा दैट विल बी योर अफेक्टेड. बट यहां पे आइदर आपका होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट और
देयर कैन बी द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब यहां पे हम लोग कुछ केसेस लेंगे सबसे पहले। तो हम लोग कैसे करके पता करेंगे? सबसे पहले अगर डोमिनेटिंग है, सो स्किप ऑफ जनरेशन ऑलरेडी हम लोग देख के आए हैं कि स्किप ऑफ जनरेशन के अंदर अगर आपका यहां पर डोमिनेंट जीन है, सो देयर विल बी नो स्किप ऑफ जनरेशन। और यहां पर अगर वो रिसेसिव जीन होगा, सो यहां पर स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा। सो यही चीज हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस दिस इज अ डोमिनेंट जीन, सो देयरफॉर यहां पर क्या होगा? स्किप ऑफ जनरेशन एब्सेंट है। स्किप ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट। ये लाइन हमें समझ में आ गया है, ऑलरेडी हम लोग देख लिए है पहले। और जस्ट यहीं पे हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि बिकॉज इट इज अ रिसेसिव, सो यहां पे स्किप ऑफ जनरेशन विल बी प्रेजेंट। स्किप ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट है इसके अंदर। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि एक एक केस हम लोग लेंगे कि यहां पे जो अफेक्टेड चाइल्ड होगा, the affected child may have both, that is either of the parents to be affected, either of the parents to be affected। इसका मतलब क्या है? मैं यहां पे जितने भी स्टेटमेंट्स लिखूंगा वो स्टेटमेंट्स को आपको अच्छी तरह देखना है। हो सकता है एक बार में आपको समझ नहीं आया हुआ होगा, तो आप तुरंत वहां पे पॉज करिए, यू जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड फिर आप प्ले करके देखिए, और एक पेंसिल और एक पेपर लेके बैठिए। जैसे जैसे मैं यहां पे करता जाऊंगा वैसे वैसे आप साथ में करते जाइए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। यहां पे क्या बोला मैंने ना? डोमिनेंट के लिए मैं बता रहा हूं कि द अफेक्टेड चाइल्ड विल बी अफेक्टेड, और उस अफेक्टेड चाइल्ड के पेरेंट्स कैसे होंगे ना? हो सकता है वो दोनों ही अफेक्टेड हो, या उन दोनों में से कोई एक पेरेंट आपका अफेक्टेड हो। क्लियर? अब इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे ना? सपोज दिस इज अ कपल एंड दिस कपल इज हैविंग a child which is affected. So if this child is affected over here, so इसके जेनोटाइप के अंदर ऑब्वियसली आइदर ये हो सकता है इस टाइप का, या ये हो सकता है होमोजाइगस टाइप का। क्लियर? मैंने पहले ही बताया था कि डोमिनेंट अगर आइदर इन द होमोजाइगस कंडीशन होगा या हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। सो यहां पर अगर ये हो रहा है, सो दिस इज बिकॉज द डिफेक्टिव जीन इज विद द कैपिटल ए, और यहां पे होमोजाइगस दोनों के अंदर ही ये डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। सपोज करो मैं यहां पर सबसे पहले ये केस लेके चलता हूं, तो अगर ये हो रहा है, सो आइदर ऑफ द पेरेंट्स के पास ये होगा। सो इफ दिस पेरेंट विल बी, सपोज इट इज कमिंग दिस वन फ्रॉम दिस पेरेंट, और इसके पास से ये आया है फॉर इंस्टेंस। अब अगर यहां से एडी आ रहा है आपका मतलब द डोमिनेटिंग अगर है, सो ऑटोमेटिकली इफ यहां पर आइदर ये हो सकता है और ये हो सकता है। अगर पेरेंट हो, सो ये पेरेंट भी आ गई इधर, इट विल बी होमोजाइगस और इट विल बी हेटेरोजाइगस। मतलब इन दोनों में से कोई भी होने से भी ये जो होगा दिस विल बी अफेक्टेड। हाँ या ना? ठीक, इधर आ जाओ। अगर ये है यहां पर, सो देयर कैन बी आइदर हेटेरोजाइगस तो होगा, हमें समझ में आ रहा है। अगर आपके डोमिनेंट जीन है यहां पर, तो ये कंडीशन हो सकता है, या हो सकता है दिस वन। ये दो कंडीशन हो सकता है। सो अगर इस कंडीशन हो रहा है आपका, सो देयरफॉर इट विल बी अननॉर्मल। यहां पे आपका जो वन कपल होगा वो नॉर्मल होगा, और अगर ये हो रहा है तो देन दिस वन विल ऑल्सो बी योर अफेक्टेड मेल। तो देखो दोनों ही पॉसिबिलिटी हो रहा है इफ द चाइल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड। तो अब दोबारा स्टेटमेंट देखते हैं। अफेक्टेड चाइल्ड मे हैव बोथ
आइदर बोथ द पेरेंट्स अफेक्टेड हो सकता है या आइदर ऑफ द पेरेंट्स विल बी अफेक्टेड। क्लियर है, बात समझ में आया? दिस इज फॉर द ऑटोसोमल डोमिनेंट का पहला, तो ये हमें स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर मैं जाता हूं कि क्या स्टेटमेंट होगा आपके रिसेसिव के लिए, ना यहां पर हो जाएगा द सेकेंड वन, ना हम लोग अफेक्टेड चाइल्ड के लिए बोल रहे हैं, सो यहां पर भी अफेक्टेड चाइल्ड may have, ध्यान दीजिएगा, affected child may have normal parent, may have normal parent. Affected child may have normal parent. How? Let's see the pedigree over here. तो यहां पर भी this is a couple and this couple is having an affected child. और यहां पे मेल और फीमेल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑटोसोमल. ठीक, सो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नेसेसरी. मैं यहां पे मेल भी ले सकता हूं, मैं यहां पे इसको फीमेल भी ले सकता हूं, द चाइल्ड. यहां पर क्या बोल रहे हैं? अफेक्टेड चाइल्ड मे हैव नॉर्मल पेरेंट. सो अगर यहां पे अफेक्टेड चाइल्ड है एंड बिकॉज इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, सो ऑटोमेटिकली इसका जो प्रोजेनी होगा, मतलब इसका जो आपका एलील्स होंगे, जेनोटाइप होगा, दैट विल बी द डिजीज कॉजिंग. ठीक, ओनली अंडर होमोजाइगस कंडीशन द रिसेसिव जीन विल बी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ. क्लियर? अब इसका मतलब एक तो आया एक पेरेंट से और दूसरे आया दूसरे पेरेंट से. क्लियर? ठीक, अब यहां पर एक कंडीशन हो सकता है कि बोथ ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस. बोथ ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस. सो यहां पर क्योंकि इस कंडीशन में दिस इज अ डोमिनेंट, दिस इज अ डोमिनेंट, सो ऑब्वियसली ये आपका कैसा होगा? डोमिनेंट जीन, तो ये रिसेसिव में आपका एक्सप्रेस नहीं होगा. सो दिट विल बी अ नॉर्मल में आपका फीमेल मदर एंड द नॉर्मल मेल फादर. सो दोनों ही देखो यहां पे नॉर्मल भी हो सकता है बट चाइल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड. बात समझ में आया? अफेक्टेड चाइल्ड मे हैव नॉर्मल पेरेंट्स. मे हैव, ऑलवेज हैव नहीं बोल रहा हूं, मे हैव. देयर आर चांसेस, प्रोबेबिलिटी कि अगर आपका यहां पर अफेक्टेड चाइल्ड हो सो दे कैन हैव द मेल पेरेंट्स, सॉरी द लाइक नॉन अफेक्टेड या नॉर्मल पेरेंट्स. क्या कंडीशन होगा? ना बोथ द पेरेंट्स. कंडीशन क्या होगा? ओनली अंडर द कंडीशन दैट बोथ द पेरेंट्स कैसा होना चाहिए? हैज टू बी हाइब्रिड. हैज टू बी हाइब्रिड. क्लियर? समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर इनमें से कोई भी आपका डिजीज कॉजिंग हो तो हो ही रहा है, बट ये नॉर्मल पेरेंट भी आपका यहां पर हो सकता है. समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं. तीसरे नंबर पे मैं लिख सकता हूं एक नया स्टेटमेंट, दैट इज बोथ अफेक्टेड पेरेंट मे हैव नॉर्मल चाइल्ड. बोथ affected parent may have normal child. Normal child. अब बोलोगे सर ये क्या सब लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज आप थोड़ा सा बियर करिए, पूरा स्टेटमेंट एक बार पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए. इसके बाद एक्स वाला करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट कुछ पेडिग्री में यहां पे ड्रॉ करूंगा जिसको देख के हम लोग उसका एक्सप्रेशन करेंगे कि ये क्या हो सकता है. तब यही सारे हमारा जो इम्प्लीकेशंस होंगे, इनके जो एप्लीकेशंस होंगे वो हमें पता चलेगा और तब आप अच्छी तरह इसको सॉल्व कर सकते हो. बट आपको इसके लिए ये स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत गहराई से जाके आपको समझना पड़ेगा. आपको खुद एक बार देखना पड़ेगा कि क्यों ये हो रहा है और क्या क्या अलग केसेस हो सकता है जहां पर ये पॉसिबल हो सकता है. एक पैटर्न
आपको पकड़ना है सबसे पहले, ठीक। सो यहां पर क्या होगा, बोथ अफेक्टेड पेरेंट मे हैव नॉर्मल चाइल्ड, क्लियर। और ये कंडीशन क्या हो सकता है ना, जहां पे बोथ अफेक्टेड होगा बट होने के बावजूद जो चाइल्ड होगा वो नॉर्मल होगा। देखते हैं ना, ये कंडीशन, सपोज दिस वन इज अफेक्टेड एंड दिस वन इज अफेक्टेड, बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, क्लियर। और इनके जो चाइल्ड है, दिस चाइल्ड इज अनइफेक्टेड, इसका कोई भी आपका डिजीज नहीं हो रहा। तो अगर चाइल्ड अनअफेक्टेड है, सो ऑटोमेटिकली ये तभी पॉसिबल होगा इफ नाइदर ऑफ दिस डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। अगर ये चाइल्ड अनअफेक्टेड है, सो ऑटोमेटिकली इसके आपके क्या हो सकता है, एक तो ये होगा, ये पॉसिबल है क्या, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक ये हो सकता है, इसमें भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जब ये होंगे तभी जाके इस कॉम्बिनेशन में दिस विल बी अ नॉर्मल चाइल्ड, हाँ या ना, अच्छी तरह समझो। बिकॉज होमोजाइगस कंडीशन में तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा, इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑल्सो द डोमिनेंट विल बी एक्सप्रेसिंग। ओनली इफ इट इज अ होमोजाइगस कंडीशन तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है दिस विल बी अ नॉर्मल चाइल्ड। अब ये अगर प्रेजेंट हो रहा है, मतलब आइदर ऑफ द पेरेंट्स विल बी हैविंग वन रिसेसिव, ठीक। और अगर ये अफेक्टेड हो रहा है, मतलब क्या है, ओनली अंडर हेटेरोजाइगस कंडीशन दे कैन बी गेटिंग अफेक्टेड, ठीक। सो यहां पर देखो, द फीमेल इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड एंड द मेल इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है। सो यहां पे व्हेन बोथ द कपल्स आर अफेक्टेड, देन ओनली क्या होगा, आपका यहां पर नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है। क्या है, चांस है होने का। बिकॉज अगर आपका यहां पर हुआ, सपोज द चाइल्ड बिकम्स कैपिटल ए, तो यहां पर ये अफेक्टेड हो रहा है। ये चाइल्ड ऐसे भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल, ये भी हो सकता है, बोथ द केसेस। बट देयर विल बी अ चांस कि जब दोनों आपके अफेक्टेड पेरेंट्स हो, ये आपका द चाइल्ड विल बी अनअफेक्टेड। समझ में आया? चलते हैं इसके अंदर। ये स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग ना, इन रिसेसिव के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर आपका बोथ अफेक्टेड पेरेंट्स है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, तो देन चाइल्ड जो होगा या प्रोजेनी जो होगा, इट कैन नॉट बी नॉर्मल, इट कैनॉट बी नॉर्मल। ये तो सबसे आसान सा पॉइंट है। क्या बोल रहा है ना, अगर पेरेंट्स यहां पे अफेक्टेड है, सो चाइल्ड कभी भी यहां पर प्रेशर दे रहा है, मतलब कभी भी यहां पे आपका नॉर्मल नहीं होगा। बट यहां पर अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो चाइल्ड मे बी नॉर्मल, जो केस हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। इसको कैसे करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ना, अफेक्टेड पेरेंट्स, तो दिस इज रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव के अंदर अफेक्टेड अगर हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली बोथ विल बी हैविंग रिसेसिव जीन्स। सो इसके अंदर भी द डिजीज कॉजिंग जो जीन है, दैट विल बी प्रेजेंट इन द recessive, and recessive gene will be expressing itself only under homozygous condition. So both the parents का जो genotype होगा, that will be same. Clear? So obviously ये जो भी आपका बच्चा पैदा करेगा, उसके अंदर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, both of them will be having that particular disease. Because दोनों केस के अंदर ही चाहे किसी से भी आपका आए, it has to be affected. Clear? So obviously यहां पे कभी भी नॉर्मल चाइल्ड नहीं हो सकता है। अगर मैं ऐसा करके दिखाऊं, तो ये नॉर्मल चाइल्ड कभी भी नहीं हो सकता है, इफ इट इज अ केस ऑफ द रिसेसिव ऑटोसोमल। ठीक है, तो चलिए यहीं तक ही हम लोग एक बार देख लेते हैं आज क्या क्या किए हम लोग।
Now first we were discussing about skip of generation, तो आप लोग कर लिए है. So ऑटोसोमल लिंक पढ़ रहे थे हम लोग ना. ऑटोसोमल लिंक के अंदर जो डिजीज कॉजिंग जर्म होगा या जो डिजीज कॉजिंग आपका जीन होगा वो एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट होगा, वो आपके प्रेजेंट होंगे इन द ऑटोसोम्स. एंड द ऑटोसोम्स विल बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट और इन द फॉर्म ऑफ रिसेसिव. अगर डोमिनेंट होगा सो बोथ इट विल बी एक्सप्रेसिंग आइदर इन द होमोजाइगस कंडीशन में तो होगा ही होगा, व्हेन द डिफेक्टिव जीन विल बी प्रेजेंट इन बोथ द क्रोमोसोम्स, और यहां पर आइदर. क्लियर? सो यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस कंडीशन में तो होगा ही. बट टू बी रिसेसिव ऑटोसोमल it has to be homozygous where both the recessive alleles will be having the defective gene. ठीक, so यहां पे हम लोग रिसेसिव के लिए स्मॉल डी से उसको डिनोट किए हैं. अब सबसे पहला केस क्या है आपका ना, सबसे पहला केस है कि डोमिनेंट के अंदर हमेशा स्किप ऑफ जनरेशन जो होगा वो एब्सेंट होगा. ठीक है, मतलब हमेशा डोमिनेंट के अंदर देयर विल बी नो स्किप ऑफ जनरेशन विच विल बी ऑब्जर्व्ड. स्किप ऑफ जनरेशन ऑब्जर्व्ड क्या नहीं होगा. देखो हर में आपका कोई ना कोई स्किप ऑफ जनरेशन यहां पर कभी भी नहीं हो रहा है. सो ये आपका हो जाएगा द फर्स्ट टू ऑब्टेन. यहां पर स्किप ऑफ जनरेशन प्रेजेंट हो सकता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां से देखो. यहां पे पेरेंट्स जो है मतलब हमेशा नहीं होगा, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी है जहां पे स्किप ऑफ जनरेशन विल बी नजर आ सकता है. सो यहां पे देखो एक जनरेशन में कहीं पर भी आपका कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बट उसका जो सेकंड जनरेशन है उसमें अफेक्शन होकर रखा हुआ है. सो मतलब यहां पर स्किप ऑफ जनरेशन हो सकता है कि एक जनरेशन स्किप हो जाए. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किए ना, अफेक्टेड चाइल्ड मे हैव आइदर वन पेरेंट टू बी अफेक्टेड और बोथ द पेरेंट्स अफेक्टेड. सो यहां पर क्या बोल रहा है ना, यहां पर जो अफेक्टेड चाइल्ड होगा उसके आइदर कोई एक पेरेंट अफेक्टेड हो या हो सकता है कि बोथ ऑफ देम आर गेटिंग अफेक्टेड. क्लियर? बट यहां पर आपका जो चाइल्ड अफेक्टेड होगा इट मे हैव नॉर्मल पेरेंट्स. ठीक है, चांसेस विल बी कि पेरेंट्स भी आपके अफेक्टेड हो सकता है, बट अगर ये आपका रिसेसिव है सो दे कैन हैव या दे मे हैव नॉर्मल पेरेंट्स. बट यहां पर ये कभी भी आपका दोनों नॉर्मल हो नहीं सकता. तो यहां से हम लोग रिसेसिव और आपका डोमिनेटिंग इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस बोला गया है कि यहां पर बोथ द अफेक्टेड पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स यहां पे दोनों ही अफेक्टेड है सो चांसेस होंगे कि आपका चाइल्ड जो है वो नॉर्मल हो सकता है, मे हैव अ नॉर्मल चाइल्ड इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड. एंड व्हाट इज द कंडीशन, दिस कैन ओनली बी हैपनिंग ओनली इफ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस. इफ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस हम लोग बोल सकते हैं. सो देखो यहां पे काफी बार ट्रू एंड फॉल्स करके भी पूछा जाता है चीजें कि ये स्टेटमेंट है. असर्शन और रीजनिंग के काफी सारे ऐसे आपके स्टेटमेंट्स मिलते हैं. सो अगर आपको दे दिया बोथ अफेक्टेड पेरेंट मे हैव नॉर्मल चाइल्ड और उसके नीचे आपका दे दिया पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, सो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा ना, दिस कैन ओनली बी हैपनिंग अंडर इफ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस. देखो यहां पे दोनों ही हेट्रोजाइगस पेरेंट है, जो आपके एक चाइल्ड ऐसा हुआ जिसका दोनों ही रिसेसिव आके जुड़ा और ऑब्वियसली ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया, सो द चाइल्ड बिकेम नॉर्मल. चलते इधर, यहां पर क्या बोल रहा है ना, यहां पर हो रहा है आपका कि बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्ट. इफ बोथ द पेरेंट्स अफेक्ट है देन चाइल्ड कैन नॉट बी नॉर्मल. जस्ट इसके उल्टा, यहां पे अगर बोथ पेरेंट्स अफेक्ट है तो चाइल्ड मे बिकम नॉर्मल. यहां पर उसी स्टेटमेंट को ही कि अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्ट हो रहा है तो चाइल्ड कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है. समझ में आ रहा है ना? ठीक. सो यहां पर देखो दोनों ही आपके जो पेरेंट्स है वो अफेक्टेड है, सो ऑब्वियसली अफेक्टेड होगा तो होमोजाइगस कंडीशन में ही, रिसेसिव कंडीशन में ही दोनों अफेक्टेड होंगे. सो ऑब्वियसली यहां पे जितने भी चाइल्ड होगा कभी भी ऐसा केस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केस तभी होगा आइदर जब ये जुड़ेगा. ठीक. और ये कंडीशन ये तो है ही नहीं कहीं पर भी, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड. सो ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है एंड ऑल द चाइल्ड विल बी
affected. Clear? In the next class, we will be discussing about the X-linked डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव, उसको हम लोग पीडीएफ मतलब पेडिग्री से कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लोग और कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ाई करेंगे. यहां तक आप लोग बहुत कम कम करके मैं पढ़ा रहा हूं बिकॉज दे आर ऑल टिपिकल, सो यू हैव टू गेट द बेसिक्स राइट फर्स्ट ऑफ ऑल. क्लियर? सो स्टडी वेल, एक एक चीज को लिख के याद करो. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू.